Hey students, today we are going to do fourth unit of your practice book, which is phrases and clauses. Both these we have discussed beforehand, but to begin with today, I am just explaining them all over again. So phrases, as we all know and we have read many of them, बहुत सारे हमने पढ़ भी रखे हैं पहले. Phrases add meaning to a sentence, but do not make complete sense. सेंटेंस की डेफिनेशन आप सभी को पता है. Sentences are always a group of words that make complete sense, whereas phrases are such which make sense of their own, but sentence का पूरा meaning convey नहीं करते. Okay, so for example, if I quote, I just want to quote one example related to phrases, and if you see, so I say at the sunset. So ये अपने आप में बता रहा है कि सनसेट के समय पे कि in the evening, ये सारे prepositional phrases कहलाते हैं because they have prepositions involved in them. Then I say come over. These are all verbal phrases. Okay, verbs involved है इनमें, दो verbs जुड़ के जो है एक phrase का form ले लिया है, इनका अपना individual meaning है. So ये सभी phrase होते हैं. अगर आप इनको बोलेंगे तो इनका meaning तो समझ में आएगा, बट कंप्लीट मीनिंग क्लियर तभी होगा जब हम इसे सेंटेंस के फॉर्म में यूज करेंगे. क्योंकि आप एग्जांपल्स देखो, ये सभी एट द सनसेट तो हमें पता है क्या है, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि सनसेट के समय पे क्या है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं. सो वो तभी क्लियर हो सकता है व्हेन वी have the use of these phrases in a complete sentence, not otherwise. Okay, I hope you have understood the concept of phrases. Then we talk about clauses. Clauses are a group of words having both subject and predicate of its own. Okay, here I should have written of, but it's a hypothetical error, just a typing error. So of, okay, so it should have been of here. I'm just correcting it. So of, it's just a group of words. Okay, so it has a subject and predicate of its own. इसका अपना एक subject और predicate होता है, ठीक है, but जरूरी नहीं कि हर एक clause जो हो वो complete sentence हो, क्योंकि वो कभी कभी dependent होता है और कभी independent होता है. Okay, like हर sentence में एक subject और एक predicate आ रहा है, ठीक है. लगभग सभी sentences जो भी हम लिखते हैं, they include a subject and a predicate of their own. For example, if you just see over here, okay, I say I have forgotten. Okay, I have forgotten is one part, और इसी को मैंने link कर दिया where I kept my bag. Okay, so what is this? यहाँ पे क्या है? I have forgotten. अब यहाँ पे भी एक subject है और verb है उसके साथ. Okay, और साथ में जुड़ा हुआ एक और सेंटेंस है. So दो sentences हैं basically, subject और predicate भी है दोनों में ही, ठीक है. एक में है एक में नहीं है, ठीक है. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे sentences इसी तरह से हों, but clauses, I am clearing it to you again because I know students get confused in this. आपको confuse नहीं होना है. एक simple आप sentence लिखते हैं, वो clause हो सकता है क्योंकि वो independent clause हो सकता है, but कोई dependent clause जो है जैसे कि इस तरह का, वो हमेशा दूसरे पे dependent रहेगा, दूसरे sentence में. So where I kept my bag, अगर मैं कहूँ या I kept my bag कहूँ, so I am not clear on this कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ. Okay, so it becomes a dependent clause and it conveys some meaning. पूरा का पूरा जो sentence है उसमें subject चाहे एक ही हो या दो हो, एक clear meaning वो convey जरूर कर रहे होते हैं. That is what happens in a clause. Okay, so this is one major difference between phrase and clause. So this is just an introductory part to the chapter. Rest we will be discussing in tomorrow's class. So just understand what a phrase is, what a clause is. Practice the worksheets in your practice book if you have not done it so far. Okay, practice the first 3 worksheets majorly because they are based on these 2 concepts only.
And after this, we are going to discuss tomorrow in the class, we'll be discussing about various types of clauses. I will take it further from here. So noun clause, adverb clause, and adjective clause. All this we have in our syllabus. So you need to understand these three. ये तीनों को समझने की जरूरत है और ज्यादा घबराने की नहीं, क्योंकि हमने ये सब देखा हुआ है, किया हुआ है. बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है. हमने सेंटेंसेस में देखा है, सीखा है, समझा है. ठीक है. सो इससे देख के सोचने की जरूरत नहीं कि ग्रामर की ये क्या चीज आ गई है. इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. उसके लिए आपको सिंपल से 3 चीजें रिमाइंड करनी है अपने आप को, एक बार ध्यान कराना है. पहली चीज तो ये कि नाउन क्या होता है. व्हाट इज अ नाउन? ओके, रिमेंबर वी डिड दिस लॉन्ग बैक. आप कर चुके हो. व्हाट इज अ नाउन आपने किया हुआ है. देन अगेन यू हैव टू डू व्हाट इज एन एडवर्ब. ओके, देन व्हाट इज एन एडजेक्टिव. क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तभी तो आप इन पे बेस्ड क्लॉजेस कर पाएंगे. ठीक है. सो मैं इसका बस एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पे ही. आपने कल, आपके साथ में कल डिस्कस करूंगी. आई एम गोइंग टू हैव क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड ऑन दिस. सो जस्ट गो थ्रू इट क्लियरली. सो व्हाट इज अ नाउन? ओके, कुछ एग्जाम्पल्स दूं मैं तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी होते हैं इसमें. तो मैं दिल्ली बोलूं, मैं करेज बोलूं, ठीक है, मैं किसी का नेम बोलूं, ठीक है. ऑल दिस इज व्हाट? ऑल दिस इज नाउन. ठीक है. सो डूअर के बारे में हमें बता रहा है. ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट द डूअर. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द एडवर्ब क्लॉज, ठीक है. एडवर्ब क्लॉज के लिए अब समझना जरूरी है कि एडवर्ब क्या है. सो एडवर्ब है हमारा जो कि किसी वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है. इफ यू रिमेंबर वी डिड दिस इन 5th सेपरेटली. ओके, शी सिंग्स ग्रेसफुली. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडवर्ब. ओके, all these kind of words. He writes slowly. Okay, that is the manner of his writing, his speed. So what is all this? This is an adverb. And addition to the verb, उसके काम करने के बारे में कोई बात बताता है वो आगे. So वो adverb होता है. और adjective, एडजेक्टिव होता है हमारा जो कि किसी पर्सन की, यानी कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. एडवर्ब तो वो हुआ जो वर्ब के बारे में एडिशनली कुछ बता रहा है. और एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन की विशेषता बताता है. मेजरली नाउन की बात करता है, कभी कभी वर्ब की भी करता है, बट हियर वी आर गोइंग टू मेजरली टॉक अबाउट नाउन. इट gives us some additional information about the adjective. Like many students want to listen to one term. He is a very intelligent student. मैम बोले से ही किसी को intelligent. Okay, so intelligent. Okay, brilliant. So what is all this? All this is talking about different qualities, either good or bad. So वो adjective होता है. So basics ये जरा देख के आओ. अगर आप भूल गए हो एक बार रिवाइज करो इन तीनों concepts को, because the next class will be taking these concepts forward. Okay. I hope you have understood it up till here. Just recapitulating whatever we have done so far. We did phrases and clauses. Okay, phrases संक्षिप्त में मैं तीनों चीजों का बताऊं जो मैंने 3 मेन पॉइंट्स की बात की आपसे. पहला ये कि फ्रेज जो होता है हमारा वो अपने आप में उसका मीनिंग होता है, बट सेंटेंस का पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करता. अपने आप में उसे हम सेंटेंस नहीं बोल सकते. हालांकि क्लॉज कभी कभी सेंटेंस भी बन जाता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, बट कभी कभी वो डिपेंडेंट होता है. जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, ये अपने दूसरे पार्ट के बिना इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट होगा सेंटेंस, इट विल नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, इट विल नॉट कन्वे अ क्लियर मीनिंग. सो ये डिपेंडेंट हो जाएगा. इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअली सेंटेंस आपस में क्लियर होता है, अगर आप उसमें से लिंकर हटा दोगे, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा. अब क्लॉज हमारे 3 टाइप्स के हैं मेन, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. पहला है हमारा नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज में हम करेंगे व्हाट इज अ नाउन,
ठीक है, पहले आप ये देखोगे नाउन क्या क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज भी समझने के लिए एडवर्ब क्या होती है ये समझना जरूरी है। सो एडवर्ब जो हमारे वर्ब को कुछ एडिशनली बताती है वर्ब के बारे में, ठीक है, किस मैनर में वो चीज होती है, और एडजेक्टिव कोई क्वालिटी बताता है, जनरली हमारे सब्जेक्ट की, डूअर की, या यूं कहो नाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, सो आप ये तीन बेसिक समझो, तभी आप तीनों टाइप के क्लॉजेस समझ पाओगे। Okay, I hope I am clear up till here. In case there is any query, you can leave your query in the comment box or ask me individually. Have a good day ahead.